कैट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छी एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाना, एंड फॉर दैट आई हैव रिपीटेडली टोल्ड यू द इंपॉर्टेंस ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक्स। एंड बस मॉक्स देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दोज मॉक्स प्रॉपरली। आपने अगर एक मॉक टेस्ट दे दिया एंड उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया, देन इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। एंड कुछ मंथ्स पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन मॉक एनालिसिस, वेयर आई टोल्ड यू नॉट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेट्रिक्स बट रादर आफ्टर द मॉक यू एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो रादर देन योर परसेंटाइल एंड अदर मेट्रिक्स। बट वो 3 मंथ्स पहले के लिए था, जब आप प्रिपरेशन फेज पे हो। अब जब आप फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी फाइन ट्यून कर रहे हो एंड ऑल्सो जब आप फाइनल लेग में हो, नाउ यू हैव टू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोज मेट्रिक्स, एंड आपकी एनालिसिस थोड़ी सी डिफरेंट हो जानी चाहिए बिकॉज नाउ यू हैव टू स्टार्ट फाइन ट्यूनिंग योर एग्जाम स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्जैक्टली वो मेट्रिक्स जो आपको ट्रैक करने चाहिए आफ्टर अ पर्टिकुलर मॉक टेस्ट एंड हाउ टू गो अबाउट इंप्रूविंग योर स्कोर बेस्ड ऑन दोज मेट्रिक्स। एंड इस वीडियो के लिए मैं यूज करूंगा कैटकिंग का मॉक पोर्टल। Thanks to the CatKing team who gave me entire access to their portal so that it becomes very easy for me to explain. In fact, if you already know Rahul sir and Anisha ma'am from CatKing, I sat with them for 1.52 hours on this portal. They wanted feedback from students' perspective as well, ki what are the features they should include on this. So I kind of know this dashboard in and out, and it will be very easy to explain for me now. So once you give the test on this portal, I'll just randomly mark all the questions on their portal, just attempt the test randomly and just move forward so that I can show you after the test the analysis report आएगी, what are the metrics that you should look at. And the first thing that you will do after the mock test is you start analyzing it. You will go through the answer sheet. As I told before as well, your preparation phase is not over yet. So आप first answer sheet में जाओ and you will review all the questions again. For verbal मैंने पहले बताया था, you will go through each and every question, no matter you got it right or you got it wrong, you will still analyze it even if it is right. And आप उसका explanation पढ़ोगे, point जो explanation दिया हुआ है, you will see whether it aligns with your logic or not, and then only you will close this section. For LRDI and you will go through all the unattempted questions as well as those incorrect questions and solve it again. आप उसका explanation देख के try करोगे, अगर आपसे solve नहीं हो रहा है you will see the explanation, and अगर explanation के बाद you get the solution and आपको लगता है कि आप you potentially could have solved it, then वो medium category of question बन जाते हैं। and if even after reading the explanation you are not able to understand it, then it's obviously a difficult question and those questions you will start ignoring. So first step आपका यही होगा, you will go through the answer sheet, you will review all the questions again, you will solve all the questions that you could not attempt in the test. So after this you have to go to the time analysis and उसमें time analysis tab में चले जाओ, and now you have to compare your time with the average time that the other students have taken to solve that particular question. and इसको भी 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। वर्बल के लिए आपकी एनालिसिस ऐसी होनी चाहिए कि आप फर्स्ट क्वेश्चन एनालाइज करोगे, जो कि यूजली एवरेज टाइम फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनी आरसी का ज़्यादा रहेगा बिकॉज द रीडिंग टाइम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। एंड वहाँ पर अगर आपका एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है, विच मीन्स यू नीड टू इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड, एंड अगर वो कंट्रोल में है और इक्वल टू एवरेज टाइम है, देन इट्स फाइन, विच मीन्स योर रीडिंग स्पीड इज गुड इनफ, यू डोंट नॉट नीड टू कॉन्सेंट्रेट मच ऑन दैट। उसके बाद आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन का टाइम एनालाइज करोगे फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एवरी आरसी, वेदर यू आर टेकिंग मच मोर टाइम देन एवरेज टाइम। अगर ये कंट्रोल में है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वर्बल का ये पार्ट कंट्रोल में रहे, बिकॉज आई हैव टोल्ड कंसिस्टेंटली दैट आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर्बल में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप जो हर इंक्रीमेंटल मिनट देते हो एक आरसी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ज़रूरी नहीं है कि उससे आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। एंड इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप खुद देख सकते हो, लाइक एक टैब बना लो, वो एक सेग्रीगेट कर लो क्वेश्चंस को, इन द सेंस दैट आप एक कॉलम में लिखो वो क्वेश्चंस जो आपने एवरेज टाइम से कम में सॉल्व किए हैं, एंड एक कॉलम में लिखो वो क्वेश्चंस जो आपने एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम लिया है सॉल्व करने में। एंड इन दोनों पे ट्राई करो एनालाइज करने का कि आपके एक्यूरेसी परसेंटेज कितना था इन दो सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए। मेरे लिए हमेशा जब भी मैं एनालाइज करता था, मेरे लिए ये ऑलमोस्ट सेम रहता था एक्यूरेसी परसेंटेज। सो अगर मैं एवरेज टाइम से बहुत सिग्निफिकेंटली हाई भी लूँ, मेरा एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होता था, एटलीस्ट फॉर वर्बल सेक्शन। एंड दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि आई विल मूव थ्रू द क्वेश्चंस क्विकली एंड आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस, विच इंक्रीज माई अटेम्प्ट्स। एक्यूरेसी परसेंटेज सेम रह गया, हाउएवर दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज माई स्कोर। सो आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। कुछ इनिशियल मॉक्स में आप, मैंने जैसे बताया, आप सेग्रीगेट करके ये हाइपोथेसिस खुद के लिए टेस्ट भी कर सकते हो।
सेकंड टाइम एनालिसिस LRDI के लिए भी काइंड ऑफ सिमिलर है। आप जब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एवरी सेट होता है वो होता है आपको कितना टाइम लगा उस सेट को स्ट्रक्चर करने में, तो आप ये एनालाइज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर करने में एक केस कितना टाइम लग रहा है। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एनालाइज करना, बिकॉज एक बार वो स्ट्रक्चर आ जाए LRDI केस का देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस काइंड ऑफ बिकम वेरी ईजी। हाउएवर एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, यूजली ऐसे जो सेट्स होते हैं ना जो बहुत डिफिकल्ट सेट्स होते हैं वो यूजली ऐसे सेट्स होते हैं जो आप स्ट्रक्चर करने के बाद भी एवरी क्वेश्चन में आपको कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ता है। यानी कि मान लो आपने सेट स्ट्रक्चर कर दिया है, 5 मिनट्स में आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया स्ट्रक्चर करके। हाउएवर सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस भी अगर एवरेज टाइम भी लाइक 2 मिनट्स है, 3 मिनट्स है, विच मीन्स इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सेट, एवरी क्वेश्चन में कैलकुलेशन है एंड वो एक डिफिकल्ट सेट था जो आपने अटेम्प्ट कर दिया। यूजली जो अरेंजमेंट के सेट्स होते हैं, जो ईजियर सेट्स होते हैं ना, उस पर आप देखोगे कि आपने स्ट्रक्चर बहुत जल्दी कर दिया। दैट इज फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 5-6 मिनट्स हो सकता है लगेगा, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट और 1.5 मिनट मैक्सिमम में सॉल्व हो जाएगा लोगों का। सो वो काइंड ऑफ ईजी सेट्स होता है। सो अगर आप ये एनालाइज कर सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से इजी सेट्स है, कौन से मीडियम, कौन से डिफिकल्ट सेट्स है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द पोर्टल्स में ये एनालिसिस ऑलरेडी कर दिया जाता है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, बट फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन डू इट एज वेल। हाउएवर जो फर्स्ट क्वेश्चन है पर सेट का वो आपको डेफिनेटली एनालाइज करना है, बिकॉज दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आपको सेट समझने में, आपको सेट स्ट्रक्चर करने में कितना टाइम लग रहा है एंड कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। एंड क्वांट की एनालिसिस काफ़ी सिंपल है, आप एवरी क्वेश्चन से गो थ्रू करो, एवरेज टाइम से कंपेयर करो। अब अगर आपको लगता है कि एवरेज टाइम से जो भी क्वेश्चन में आपने सिग्निफिकेंटली हाई टाइम लिया है उनको नोट डाउन करो एंड ट्राई टू सी अ पैटर्न। अगर टेस्ट ऑन टेस्ट आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही आप वो क्वेश्चंस लाई करते हैं जहाँ पर एवरेज टाइम से ज़्यादा ले रहे हो, देन प्रॉब्ली देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मान लो आपका ज्योमेट्री है जहाँ पर आप एवरी क्वेश्चन यू आर टेकिंग मोर देन द एवरेज टाइम एंड अक्रॉस द टेस्ट यू सी दैट पैटर्न रिपीटिंग। सो मतलब आपका ज्योमेट्री वीक है एंड नाउ यू हैव टू टेक अ कॉल वेदर यू वांट टू improve your geometry or whether you want to ignore that in the CAT paper. That only you can decide for yourself and that also depends on your preparation level. अगर आपके बाकी टॉपिक्स बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हैं एंड आपको लगता है कि नहीं उसमें और ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं चाहिए, then you can go for improving geometry. However, if you think that rest of the topics are also not so well prepared and आपको उस पर फोकस करना चाहिए, then आप उस पर फोकस करो. You can start ignoring some of the geometry questions in the CAT paper. It's a call that you have to take based on your convenience and based on your preparation level. And time एनालिसिस के बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस, जो कि है आपका पोटेंशियल स्कोर कितना हो सकता था। तो उसके लिए मैं जाऊंगा एडवांस सेक्शन में, एडवांस एनालिसिस में जाके आई कैन शो यू हाउ व्हाट एग्जैक्टली आई मीन। एंड ये मैंने पहले भी कवर किया था कि आपको क्वेश्चंस डिवाइड करने हैं इजी, मीडियम, डिफिकल्ट में, एंड आप वो फोकस करोगे कि इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस कितना था एंड उन क्वेश्चंस में से आपने कितना स्कोर किया। सो वो एक काइंड ऑफ मैनुअल मेथड था। डैशबोर्ड में मैं बहुत ईजिली आपको दिखा सकता हूँ कि आप कैसे आपका पोटेंशियल स्कोर फिगर आउट कर सकते हो। एंड रिमेंबर, अगर आपके पास पोर्टल का एक्सेस नहीं है, इट्स फाइन, यू कैन डू इट मैनुअली एज वेल। आप पेपर में नोट डाउन कर सकते हो ये सब फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर लिख के, थोड़ा सा एफर्ट जाएगा बट इट्स आई थिंक इट्स फाइन, इट कैन बी डन मैनुअली एज वेल। अगर पोर्टल में आप जैसे देखते हो कुछ इनकरेक्ट क्वेश्चन हैं, तो आपको उन समझना है कि वो इनकरेक्ट क्वेश्चन गलत हुआ क्यों है। ईदर यू कैलकुलेटेड इट रॉन्ग, मतलब आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दिया, या फिर आपने क्वेश्चन सही से रीड नहीं किया, बट यू कुड हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन, विच मीन्स इट्स काइंड ऑफ योर पोटेंशियल स्कोर। आप कर सकते थे बट आपने फिर भी गलत कर दिया। या फिर एक हो सकता है रीज़न कि आपने गेस कर दिया था वो स्कोर, मतलब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बस गेस मार दिया था बिकॉज टाइम नहीं था या फिर फॉर एनी अदर रीज़न। तो आप फिर वो एनालाइज करो कि आप वो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, आप उसको सॉल्व करो आफ्टर द टेस्ट, एंड इफ यू कैन सॉल्व इट विच मीन्स इट बिकम्स योर पोटेंशियल क्वेश्चन। एंड एक और रीज़न हो सकता है कि वो जेन्युइनली डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इवन आफ्टर द टेस्ट, which means it's a difficult question and it cannot be counted as your potential score. एंड आपने सिमिलरली जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है उसमें जाओ, एंड एक्चुअली मैंने टेस्ट में गलती कर दिया कि मैंने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्टेड छोड़ा ही नहीं, सो आई कैन नॉट शो यू दिस हियर। हाउएवर इट्स फाइन, आई थिंक अनअटेम्प्टेड में भी यही आपको फिगर आउट करना है, वेदर आपने वो जो क्वेश्चन छोड़ा था, वेदर यू लेफ्ट इट फॉर टाइम। अगर आपने टाइम के लिए छोड़ा था वो क्वेश्चन, टाइम परमिट नहीं किया आपको, आफ्टर द टेस्ट सॉल्व करो इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट, विच मीन्स इट्स योर पोटेंशियल स्कोर। अगर वो क्वेश्चन आपने छोड़ा था बिकॉज यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ड्यूरिंग द टेस्ट, then again it's not cannot be counted as your potential score, वो आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था। या फिर ये भी हो सकता है आपने ड्यूरिंग द टेस्ट आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया एंड दैट्स व्हाई यू कुडंट सॉल्व इट, एंड आपने उसमें टाइम भी दिया बट यू कुडंट सॉल्व इट। सो वो भी आपका काइंड ऑफ एक मतलब पोटेंशियल स्कोर में काउंट हो सकता है बिकॉज यू कुड हैव सॉल्व इट बट आपने रीड
सही से नहीं किया। तो ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम स्ट्रैटेजी एक अलग बात होती है एंड पोटेंशियल स्कोर जो है वो डिपेंड करती है आपकी थ्योरी एंड प्रिपरेशन लेवल पे। आप जब इसके फाइनल समरी पे जाओगे यू कैन सी कि आपका करंट स्कोर कितना है, आपका पोटेंशियल स्कोर कितना है। अगर इसमें सिग्निफिकेंट गैप है विच मीन्स आपको एग्जाम स्ट्रैटेजी इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, आपका प्रिपरेशन लेवल स्ट्रांग है, बट आपको मोर एंड मोर एग्जाम्स देना है सो दैट आप करंट स्कोर के पास पहुंच पाओ। मतलब आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो बिकॉज ईदर यू आर गेटिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम, ईदर यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट अंडर द गिवन रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, या फिर ये प्रॉब्लम्स है आपकी थ्योरी एंड प्रिपरेशन में प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आपका पोटेंशियल स्कोर है। बट अगर आपको लगता है कि आपका करंट स्कोर एंड पोटेंशियल स्कोर बहुत क्लोज है, यानी कि आप जितना सॉल्व कर पाते थे आप टेस्ट में सॉल्व कर पा रहे हो, देन यू हैव टू इंक्रीज योर पोटेंशियल स्कोर एंड उसके लिए आपको रिविजिट करना पड़ेगा थ्योरी, आपको सेक्शनल ज़्यादा देने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा टॉपिक टेस्ट। अगर आप एक टॉपिक में वीक हो तो वो ट्राई करो इंप्रूव करने का। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। करंट स्कोर वर्सेस पोटेंशियल स्कोर देखो, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अगर आपका, विच मीन्स एग्जाम स्ट्रैटेजी इंप्रूव करो। अगर आपका पोटेंशियल एंड करंट स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, अगर आपका पोटेंशियल ज़्यादा नहीं है, विच मीन्स थ्योरी पे फोकस करो, प्रिपरेशन पे फोकस करो। एंड ये सब एनालिसिस जब हो जाए अब जाओगे आप ओवरऑल समरी पे, एंड यहाँ पर आपको देखना है दो मेट्रिक्स, दैट इज योर परसेंटेज एक्यूरेसी एंड योर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। एंड बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स आप आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिसाइड करोगे। सो आप अगर नीचे आते हो पोर्टल में यू कैन सी मैंने बहुत सारा नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिया था एंड इट इज़ काइंड ऑफ रिकमेंडिंग दैट मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सो आई नीड टू वर्क ऑन माई थ्योरी। सो कुछ ऐसे काइंड ऑफ एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ एंड फॉर दिस आई डोंट नीड द पोर्टल एनी मोर। आई थिंक आई एम गुड विद द पोर्टल, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पोर्टल एंड नाउ आई कैन टॉक वन ऑन वन विथ यू। एंड बट बिफोर आई क्लोज द पोर्टल लेट मी जस्ट शो यू वन मोर थिंग दैट इज गुड इन कैट किंग्स पोर्टल। आप अगर यहाँ पर जाओगे लाइक द मॉक एनालिसिस खोलोगे देन देर इज एन टॉपर स्ट्रैटेजी। यहाँ पर जो एक कोई कैट टॉपर है जिसने फुल एग्जाम एनालिसिस किया होता है एंड एक टॉपर होता है जिसने फुल एग्जाम जस्ट लाइक अ स्टूडेंट अटेम्प्ट किया होता है। तो आप वो टॉपर्स अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी देख सकते हो एंड एक टॉपर का एनालिसिस देख सकते हो। इनफैक्ट ये जो मॉक्स है एक FMS एलुमनाई है मोइनाक एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, लाइक हमने कैट प्रिपरेशन भी साथ में किया था, सो आई नो ही इज़ लाइक रियली गुड एट दिस। एंड आप उनका स्ट्रैटेजी देख सकते हो, उनका अटेम्प्ट देख सकते हो कि वो कैट टॉपर ये मॉक कैसे अटेम्प्ट करते हैं। So that is one good thing about the portal that I wanted to let you know, and thanks to Cat King now I can close the portal and now I can talk to you one on one where I will just let you know कि ये दो factors जो है percentage accuracy and unattempted questions, उससे आप कैसे decide करोगे आपकी preparation ahead. Consider a case where your percentage accuracy is very high but your unattempted questions are also very high, which means यहाँ दो case हो सकता है। Either you are solving the initial set of questions very slowly and you are not getting time for the last few questions, तो इसके लिए आप थोड़ा urgency लाओ अपने exam taking strategy में। आप जब भी next exam attempt करते हो try to solve every question, ऐसा mind में रखो कि आपको 2 minutes में every question you have to solve it, आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। Don't think that it's a 40-minute exam, think that every question is 2 minutes का, and उससे आप में वो sense of urgency आ जाएगा and probably that will help you solve more questions। या फिर एक और reason हो सकता है कि आपके कुछ topics में preparation अच्छी नहीं है इसलिए आप जेन्युइनली वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए बिकॉज आपके अदर एरिया स्ट्रांग हैं जो आप परसेंटेज एक्यूरेसी भी हाई है, इसलिए आप उन टॉपिक्स की थ्योरी में वापस जाओ, टॉपिक टेस्ट ज़्यादा दो एंड ट्राई टू इम्प्रूव दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो इससे आपके डेफिनेटली अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, बट ट्राई टू सी वेदर योर परसेंटेज एक्यूरेसी इज टेकिंग अ हिट और नॉट। एंड सेकंड केस इज आपके परसेंटेज एक्यूरेसी लो है, हाउएवर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी लो है। सो इस केस में या तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गेस कर रहे हो, अगर आप ये गेस कर रहे हो देन इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल। आई हैव नो सोल्यूशन फॉर यू ऑनेस्टली, आपको ये अवॉइड करना है, दैट्स इट, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। हाउएवर एक जो होता है वो है कि आप में जो एग्जाम टेकिंग वो माइंडसेट है वो अभी तक नहीं आया है, एग्जाम फटीग अभी तक हो रहा है, एंड इसके लिए बस एक सोल्यूशन है फॉर एवरी पर्सन लाइंग इन दिस कैटेगरी। उनके लिए मेरे पास बस एक सोल्यूशन है, दैट इज अटेम्प्ट मोर मॉक्स, एज मेनी मॉक्स यू कैन अटेम्प्ट, बस अटेम्प्ट करते रहो। एंड सेक्शनल्स भी अगर करना है, अगर आपके मॉक्स का टाइम नहीं है सेक्शनल्स करना है तो क्वांट के सेक्शनल्स ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो, मॉक्स जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो वो करो, बिकॉज आपको आपका एग्जाम फटीग हटाना है। अगर आप जेन्युइनली ट्राई कर रहे हो, यानी कि मतलब आप गेस नहीं कर रहे हो, आप जेन्युइनली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो एंड बट समहाउ यू आर नॉट कैलकुलेटिंग इट करेक्टली या फिर आप मिसरीड कर रहे हो, इट मीन्स आप में वो एग्जाम फटीग है। आप वो 2 hours जो स्ट्रेच में बैठना होता है
है, that itself is a very big task. So that's why आपको वो fatigue हटाना पड़ेगा, and that's why you have to build your mind muscle for that. And उसका एक ही way है, give more mocks, give more sectionals. Third case where your percentage accuracy is high and your unattempted questions are also low, which means you are doing great in your examination. You do not need to change anything. Just keep appearing for more and more mocks. You do not need to change your strategy. आप जो कर रहे हो exactly आप one of the toppers हो definitely, because आपके unattempted questions भी बहुत कम है, आपका percentage accuracy भी high है, which means आपके marks भी अच्छे हैं. तो keep doing whatever you are. Keep attempting mocks. Do not focus much on theory now, because now आप जितना भी mocks दोगे वो और ज़्यादा improve होता रहेगा आपका score. So just keep doing what you are. Last step for people whose percentage accuracy is also low and unattempted questions are also pretty high. So for them, probably yes, you are lacking a bit. You are losing a lot of marks in the section. Probably the need for you is to go back to the drawing board. Like you have to go back to the theory. You have to take more sectionals. You have to take more topic tests, and you have to solve more problems and then come to attempting the mocks again. आप कुछ टाइम तक मॉक देना अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज प्रॉब्ली आप वो 2 hours आप देते हो, बट इट्स काइंड ऑफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट एंड वो वेस्ट हो रहा है टाइम. सो आप वो टाइम से निकाल के थोड़ा थ्योरी पे फोकस करो, एंड थ्योरी के साथ आप सेक्शनल्स एंड टॉपिक टेस्ट पे फोकस करो, एंड प्रॉब्ली रिड्यूस योर मॉक्स टू लाइक 1 mock पर वीक देने का ट्राई करो, बट उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज यू नीड टू इम्प्रूव योर थ्योरी एंड यू नीड टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन लेवल एज वेल. So that was all about the mock analysis. If you want access to Cat King's portal, I've put the link to buy their mocks in the description. You can buy it from there. And remember, for the next 2 months, I know it's going to be very difficult for you. So I'll try to stay as active as possible on YouTube, Instagram. I've told that before as well. You can put any comment, any doubt that you have, and I'll try to address it as much as possible. And keep preparing well. I know you will do great and you will do amazing in your CAT exam.